الدین الخالص۔ آج جس موضوع کے تحت میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ایک بنیادی عقیدے سے ہے جس کا اعتقاد نہ رکھنا، جس پر ایمان نہ لانا یا جس سے انکار کر دینا ایک مسلمان کو اسلامی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک بنیادی عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں ایک نہ ایک دن تم کو جانا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا دوبارہ ہم کو اسی مٹی سے پیدا کرے گا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کے کئی مراحل ہیں، کئی ادوار ہیں۔ ایک مرحلہ تو وہ تھا جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، دوسرا مرحلہ جب وہ اس دنیا کے اندر آیا، پلا بڑھا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، اور تیسرا مرحلہ اس دنیا سے جانے کے بعد کا مرحلہ یعنی قبر کا مرحلہ، عالم برزخ کا مرحلہ، اور چوتھا اور آخری مرحلہ جزا و سزا کا مرحلہ ہوگا۔ اب ان تمام ادوار کے اوپر بحث کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس میں سے ایک مرحلہ جو ہماری زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد کا مرحلہ ہے، یعنی عالم برزخ کا مرحلہ، قبر کی زندگی کا مرحلہ، آج کے اس اجلاس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى، کہ اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب کفار فاسقین موت کی سختیوں کے اندر ہوتے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب کفار فاسقین موت کی سختیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جان کو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب سے دوچار ہونا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان کو جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى، اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب کفار فاسقین موت کی سختیوں کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، تڑاک تڑاک تھپڑ مارتے ہیں چہروں کے اوپر۔ ہم نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ قبر یہ عذاب کو اللہ نے چھپایا ہے، کیونکہ یہاں پر مقصود ایمان بالغیب ہے، ایمان لانا مقصود ہے۔ اگر اللہ اس عذاب کو دکھلا دے تو انسان اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے۔ اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھ لے، اشارہ ہے کہ آپ بھی وہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یضربون وجوہہم، تڑاک تڑاک تھپڑ مارتے ہیں چہرے کے اوپر، وادبارہم، اور پیٹ اور سرین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چل یہاں سے، آج تجھے آگ کا مزہ چکھنا ہے، آج تجھے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس آیت کے حوالے سے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو قبر کے اندر جیسا کہ دنیا کے اندر اس نے گزارا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قبر کے اندر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے بارے میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ انسان قبر کے عذاب کو دیکھ نہیں سکتا، اگر انسان قبر کے عذاب کو دیکھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بے ہوش ہو جائے گا، انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
मेरी ये ख्वाहिश थी कि तुम्हें कब्र के अजाब को दिखला दिया जाए, तुम्हें कब्र की हौलनाकी को दिखला दिया जाए, तुम्हें कब्र के मंजर को दिखला दिया जाए, लेकिन मुझे ये अंदेशा है, मुझे ये खौफ है कि कहीं तुम्हारे अब्बा की लाश, अम्मा की लाश, भाई की लाश, बहन की लाश घर में पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जाकर के उसको कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दो। लौला अल्लाह तदाफनु लदावत अल्लाह, अगर तुम अपने मुर्दों को दफनाना ना छोड़ते, अगर तुम अपने मुर्दों को दफनाना ना छोड़ते तो मैं अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तुमको अज़ाब कब्र को दिखा देता, अल्लाह तुमको अज़ाब कब्र को दिखला देता, लेकिन मुझे ये अंदेशा है कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। अल्लाह ने इसको मख्फी रखा क्योंकि यहां पर मकसूद ईमान बिल गैब है। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि उस मुर्दे को जो कब्र के अंदर आजाब दिया जाता है, उस पर फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसल्लत करता है, और वो फरिश्ता, वो मुर्दा उस कब्र के अंदर चीखता है, और उस मुर्दे की आवाज को, चीखने की आवाज को, मारने की आवाज को, कब्र की आवाज को सब सुनते हैं, सब सिवाय सकलैन के, यानी इंसान और जिन्नात के। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि उस कब्र के अजाब को ये सुन सके। लौ समिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर ये सुन लें, लसैकुन, सब की सब बेहोश हो जाएंगे, सब की सब बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ने मख्फी रखा है। अगर इस कब्र के अजाब को, आज जिस कब्र को हम देख रहे हैं, ये हम पर तमाम लोगों के ऊपर ये इस मरहल से गुजरना है, हम तमाम लोगों को कब्र के मरहले से गुजरना है, हम तमाम लोगों के कब्र के सवाल और जवाब हमको देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों के पास से हुआ। साहबे कराम जो आपके हमरा थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये और ये किसकी कब्र है? साहबे कराम ने कहा, अल्लाह के नबी, ये फला मुसलमान की और ये फला मुसलमान की, ये फला मुसलमान की और ये फला मुसलमान की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहुम ला युअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़िबान बिकबीरिन, इन दोनों कब्रों के ऊपर अजाब हो रहा है, इन दोनों कब्रों के ऊपर अजाब हो रहा है, और कोई बहुत भारी भरकम चीज की वजह से अजाब नहीं हो रहा। अगर जरा सा एहतमाम करते तो इस अजाब से बच जाते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें से जो पहला शख्स है जिसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, जिसको कब्र के अंदर आजमाइश हो रही है, यमशी बिन नमीमा, चुगलखोरी करता था। चुगलखोरी समझते हैं आप लोग? हाँ, चुगलखोरी करता था, इधर की बात उधर करता था। आप एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सलासतु व सबूना बाबन ऐसर व मिस्ल यनकहु रजुल उम्म, सूद के 73 दरवाजे हैं, 73 दर्जात हैं। ऐसर व मिस्ल यनकहु रजुल उम्म, सूद का सबसे छोटा गुनाह अपनी हकीकी मां के साथ बदकारी करने के बराबर। ये सूद का सबसे छोटा गुनाह है। ऐसर व मिस्ल यनकहु रजुल उम्म, ये सूद का सबसे छोटा गुनाह है। और सूद का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? और वो गुनाह है क्या? क्या वो गुनाह हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं? जी हाँ भाई, वो गुनाह हमारे माशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर वो गुनाह होते हैं, हर मजलिस के अंदर वो गुनाह होते हैं, चाहे उलमा की मजलिस हो, माशरान की मजलिस हो, मर्द की मजलिस हो, औरतों की मजलिस हो, इल्ला माशाअल्लाह हर मजलिस के अंदर वो गुनाह होते हैं। कौन से वो गुनाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व इन्ना अरबर रिबा इर्जुर रजुलिल मुस्लिम, सूद का सबसे बड़ा गुनाह किसी मुसलमान की इज्जत को मलियामेट करना, किसी मुसलमान की इज्जत को मलियामेट करना, उसकी इज्जत पर डाके डालना, ये सूद का सबसे बड़ा गुनाह है। आप जुगली करना, गीबत करना। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको कब्र के अंदर आजाब हो रहा है, यमशी बिन नमीमा, ये चुगलखोरी करता था। दूसरा शख्स क्या करता था? ला यस्ततिर मिनल बौल ला यस्तंदी मिनल बौल, पेशाब करता था, पैंट और लुंगी क्या उसी तरह चढ़ा लिया, ना पानी इस्तेमाल किया, ना मिट्टी इस्तेमाल किया। एक माना। दूसरा माना ये कि जब ये पेशाब करता था तो खड़े खड़े मुतता था, बैल और कुत्तों की तरह,
छींटों से नहीं बचता था, छींटों से। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक इंसान को, आदमी को, औरत को, आलिम और जाहिल को आम तौर से जो कब्र के अंदर आदाब होते हैं पेशाब की बिना पर होते हैं, पेशाब की बिना पर होते हैं। अगर जरा सा एहतिमाल करते तो इस आदाब से बच जाते। यहां पर एक बात और बयान करना मुनासिब समझता हूं। जब इन दोनों को कब्र के अंदर आदाब हो रहा था तो आप अलैहिस्सलाम ने खजूर की एक टहनी ली और टहनी लेने के बाद उसको आधो आध चीर करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एक टहनी आप अलैहिस्सलाम ने एक कब्र के ऊपर रख दिया और दूसरी टहनी दूसरी कब्र के ऊपर आप अलैहिस्सलाम ने रख दिया। और आप अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मुझे ये उम्मीद है कि जब तक ये डालियां तर रहेंगी अल्लाह की तस्बीह करेंगी, तो जब अल्लाह की तस्बीह करेंगी तो अल्लाह इनकी अज़ाब के अंदर कमी कर देगा, तखफीफ कर देगा। अब यहीं से हमारे भाई लोग कब्र पर फूल और माला चढ़ाने के दलील पकड़ते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र के ऊपर टहनी चढ़ाई और कहते हैं कि वहां पर फूल नहीं था इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने टहनी चढ़ाई थी। अरे अल्लाह के बंदे, तूने अपने ही पर मुसीबत डाल ली। नबी ने टहनी क्यों चढ़ाई थी? क्यों टहनी चढ़ाई थी? अजाब हो रहा था तब टहनी चढ़ाई थी। इसका मतलब आपके दादा को अजाब हो रहा है, आपके पीर साहब को अजाब हो रहा है? ना, मत करो, मत करो। नबी थे, नबी को आसमान से बताया गया इन दोनों कब्रों के ऊपर आदाब हो रहा है, लेकिन अब कोई भी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं जो ये बता सके कि फला को आदाब हो रहा है, फला को साथ ऐसा हो रहा है, फला को ऐसा हो रहा है, फला को ऐसा हो रहा है। कोई अब इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं जो गैब की बातों को बता सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से बताया गया था कि इन कब्रों के ऊपर आदाब हो रहा है। अब आप अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में तशरीह भी कर दी कि अगर इस दो गुनाह से बच जाते, एक पेशाब के छींटों से और चुगलखोरी से, तो इस गुनाह से बच जाते। तो हमें चाहिए कि हम इन गुनाहों से बचें। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जनाजा ला करके रख दिया गया, लोगों ने जनाजे को अपने कांधों के ऊपर उठाया। अब वो जनाजा बोल रहा है, सुना है आप लोगों ने? जनाजे को कंधा दिए होगे ना कभी? वो जनाजा बोलता है, सुना है ना? कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं। इसलिए कि जनाजे की सिर्फ दो ही कैफियत हो सकती है, या तो सालिहा या गैर सालिहा, नेक होगा या बद होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर वो मुर्दा नेक है, अच्छा है, मुत्तकी है, नमाजी है, अल्लाह वाला है, तो कहता क्या है? कद्दमुनी कद्दमुनी कद्दमुनी, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। काहे के लिए जल्दी कर रहा है? ताकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसके लिए जो कब्र के अंदर इनाम और इकराम तैयार कर रखा है उसे जल्द अज जल्द हासिल हो जाए, इसलिए जल्दी कर रहा है। और इसी के बरक्स अगर वो मुर्दा गैर साले है, अगर वो मुर्दा गैर साले है, फासिक है, फाजिर है, बेनमाजी है, मुशरिक है, बिदती है, कब्र पुजवा है, तब क्या कहता है? उठाओ बुखारी की हदीस, या वैलहा ऐना तज़हबून बिहा, हाय बर्बादी कहां लेकर के जा रहे हो? बुखारी की रिवायत, या वैलहा, हाय बर्बादी कहां लेकर के जा रहे हो? जहन्नम के घड़े के दूर। यह आयत भी इस बात की दलील है कि मुर्दे को कब्र के अंदर आदाब होता है। इंसान अगर जालिम है, इंसान अगर फाजिर है, बेनमाजी है, बिदती है और तमाम गुनाहों का करने वाला है, तो उसको कब्र के अंदर आदाब दिया जाएगा, उसको कब्र के अंदर आदाब दिया जाएगा। इस कब्र से बचना चाहिए, इस कब्र के आदाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। अपनी जिंदगी को हमको गनीमत जानते हुए हमें लम्हा लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। वरना कब्र की वो तारीकी रात बड़ी कठिन वाली रात है। ये कब्रिस्तान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नुहीतुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, पहले मरहले में मैंने तुमको कब्रिस्तान की जियारत करने से मना किया था। इसलिए कि वही काम जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं, कब्र के ऊपर रौनक है, कब्र के ऊपर अगरबत्तियां चल रही है, कब्र के ऊपर फूल और माले चढ़ रहे हैं, यहाँ आखिरत की कोई याद नहीं आने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मरहले के अंदर जो कब्र की जियारत करने से मना किया था, सेम वही नक्शा था। आपने फरमाया नुहीतुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुमको कब्रिस्तान की जियारत करने से मना करता हूं, लेकिन सुनो सुनो सुनो, फज़ूरुहा फज़ूरुहा, अब मैं तुमको हुक्म देता
हूं, अब मैं तुमको हुक्म देता हूं, जाओ तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, जाओ तुम कब्रिस्तान को देखो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि तुम्हें कब्रिस्तान की जब ज़ियारत करोगे तो तुम्हें आखिरत की याद आएगी, अपनी मौत की याद आएगी, अपनी तन्हाई की याद आएगी, अपनी 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 बेबसी को तुम देखोगे कि हमसे अजीज और कारिब, हमसे शान और शौकत वाले लोग इस 2 गज मिट्टी के अंदर दफन है, इस 2 गज मिट्टी के अंदर दफन है, तुम्हें आखिरत की याद आएगी। तो आप अलैहिस्सलाम इस कब्र के बारे में लोगों को बतलाते थे कि तैयारी कर लो। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आप अलैहिस्सलाम के डबल दामाद, क्या नाम था, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर सहाबी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बड़ी मालो दौलत दी थी, लखपति करोड़पति बनाया था, आपको आपके घर में बड़ी ही मजलूमाना हालत के अंदर शहीद कर दिया गया, वो बात अपनी जगह पर। लेकिन जब आपका गुजर किसी कब्रिस्तान के पास से होता, किसी कब्र के पास से होता, तो बैठ करके खड़े होकर के रोना शुरू कर देते, और इतना रोते कि आपकी आंसुओं से दाढ़ियां तर हो जाया करती थी। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपके सामने जन्नत का जिक्र होता है, नहीं रोते हैं, आपके सामने दोज़ख का जिक्र होता है, नहीं रोते हैं, आपके सामने वहां के तपिश और धुएं का जिक्र होता है, नहीं रोते हैं, लेकिन जब आपके सामने कब्र का जिक्र होता है, आप इतना रोते हैं कि आपकी आंसुओं से दाढ़ियां तर हो जाया करती है। उस मौके पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल कब्र अव्वलल मनाजिल आखिरा, सुनो कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, सुनो कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान यहाँ कामयाब हो गया तो कसम है वहदहु ला शरीक की आगे की सारी मंजिलें उसकी कामयाब और कामरान रहेगी। और अगर इंसान यहाँ नाकाम हो गया, यहाँ फेल हो गया तो आगे की सारी मंजिलें नाकाम और नामुराद होगी। दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, हमने उस कब्र के लिए क्या तैयारी कर रखी, उस कब्र की तारीकियों से बचने के लिए हमने क्या तैयारी कर रखी। आज फातिहा पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन इशा की नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं, नमाजों के लिए वक्त नहीं है, कब्र के सवाल जवाब के लिए हमें वक्त नहीं है। उस कब्र पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फरिश्तों को और ऐसे फरिश्तों को मुसल्लत करेगा जो अंधे होंगे, जो बहरे होंगे, जिनको इंसान की कैफियत से कोई परवाह नहीं होगी, कोई परवाह नहीं होगी। इंसान की कैफियतों से उनको अंधे और बहरे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कब्र के ऊपर फरिश्ते को मुसल्लत करेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो फरिश्ते उनको मारेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लौ ज़ुरिबा बिहल जिबाल, अगर उस हथौड़े को पहाड़ के ऊपर मार दिया जाए, लौ ज़ुरिबा बिहल जिबाल, अगर पहाड़ के ऊपर मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा हो जाएगा। यही अमल उसके साथ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अन्नारु युरदूना गुदुव व अशिया, आग है जिस पर वो सुबह शाम आग है जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाएंगे। यह आयत भी इस बात की दलील है कि मुर्दे को कब्र के अंदर आज़ाब होता है। बहुत से मराहिल के बाद इंसान के ऊपर जब सकरात का वक्त आता है तो इंसान की आवाज के अंदर घरघराहट पैदा हो जाती है। अब और तब का मंजर होता है, घर वालों के आंखों में आंसू होते हैं, माँ रो रही है, बेटियां रो रही हैं, मौत और उनके मुआमिन फरिश्ते, अगर नेक है अपनी जगह पर रहने दीजिए, अगर बद है ता हद निगाह मलाइका ही मलाइका। याद रख लेना, अगर उस वक्त मुर्दे के अंदर चीखने की ताकत हो तो इतनी जोर से चीखेगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे, और अगर भागने की ताकत हो तो इतनी दूर भागेगा कि जिसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। लेकिन सारी कुव्वत सल्ब है, सांस उल्टी चल रही है, कौन से फरिश्ते वहां पर मौजूद है, रहमत के नहीं जहमत के फरिश्ते। क्या आयत करीमा मैंने पढ़ी, वलौ थरा, ऐ नबी काश आप वो मंजर देख लेते जब कुफार फासिकीन मौत की सख्तियों के अंदर होते हैं, वल मलाइकतु बासितु, और फरिश्ते अपने हाथ को फैलाए हुए कहते हैं। और दूसरी आयत के मुताबिक यज़रिबूना वजूहहुम, उनके चेहरों पर थप्पड़ मारते हैं। और जरा बताओ अल्लाह के बंदो, अगर इस कैफियत को, इस हालत को घर के अफराद अगर देख ले, अल्लाह की कसम 2 घोट पानी पिलाने के लिए आखिरी लम्हे के अंदर भाग जाएंगे घर के अफराद भी। अगर इस कैफियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को दिखला दे तो आखिरी वक्त में 1 घोट पानी पिलाने का भी कोई पिलाएगा नहीं, भाग जाएगा लोग। इसलिए अल्लाह ने इसको मख्फी रखा, क्योंकि यहां पर ईमान बिल गैब है। अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है अज़ाबे कब्र का, तो इस आयत का मुनकिर है, वो इस हदीस का मुनकिर है। और भी जो हदीस
बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर और भी हदीस की किताबों के अंदर है, वो इन तमाम चीजों का मुनकिर है और ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत से मराहिल के बाद जब इंसान मर जाता है, बहुत से मराहिल के बाद उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जाती है। अब उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो बिल्कुल काले होते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, ऐनुहुमा मिस्ल कुदूर नुहास, ऐनुहुमा मिस्ल कुदूर नुहास, उनकी आंखें तांबे के देगची की तरह होती हैं। वो अनियाबुहा मिस्लु सियासिल बकर, और उनकी दांत गाय के सींग की तरह होते हैं। वो अस्वातुहा मिस्ल रात, और उनकी आवाज बिजली की तरह होती है। बाज़ रिवायतों में है कि वो अपनी दांतों से और अपने बालों से उस मिट्टी को उखेड़ते हुए आएंगे कब्र के अंदर। अगर उस कैफियत को आएंगे और उनसे तीन तरह के सवाल पूछेंगे, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबीयुका। ये तीन सवाल पूछेंगे कि तेरा रब कौन, तेरा दीन कौन, तेरा दीन क्या है, और तेरा नबी कौन है। अगर नेक इंसान होगा इसका जवाब बड़े आसानी से दे देगा, लेकिन अगर वो मुर्दा गैर साले होगा कहेगा हाँ ला अदरी, हाँ ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं खबर, मुझे नहीं मालूम। उसको अल्लाह के फरिश्ते कोड़े मारते हैं, हथौड़े मारते हैं, जिसके बारे में मैंने बयान किया कि उस हथौड़े को पहाड़ पर अगर मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व तुसल्लित अलैहि अकारिबु व तनानीन, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर सांप और बिच्छू को मुसल्लत करता है। लौ नफका अहदुन अला दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसमें से एक अज़दा, एक बिच्छू या एक सांप अगर दुनिया के अंदर, दुनिया की तरफ फंकार मार दे, एक सांप अगर दुनिया के अंदर फंकार मार दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा अंबतत शैआ, कोई जमीन के अंदर कोई शजर उगेगा नहीं, कोई अनाज नहीं उगेगा। ऐसे बिच्छू को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कब्र के अंदर, ऐसे सांप को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसल्लत कर देगा। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अन्नहु युसल्लतु अलैहि तिस्अतु व तिस्ऊना तिन्नीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर 99 अज़दहे को मुसल्लत करेगा, 99 अज़दहे को मुसल्लत करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरूना मत्तिनीन, ऐ मेरे सहाबी क्या तुम जानते हो कि वो तिन्नीन, वो अज़दहे कैसे होंगे? सहाबे कराम ने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबूना हय्यतन लिकुल्ली हय्यतिन सबउ रुज़िन, हर अज़दहे के 70 मुंह होंगे, हर अज़दहे के, हर सांप के 70 मुंह होंगे और हर मुंह पर 7 मुंह एक्स्ट्रा और होंगे। अल्लाह हम तमाम लोगों को इस कैफियत से, इस आज़ाब से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हर अज़दहे के 70 मुंह और हर मुंह पर एक्स्ट्रा 7 मुंह होंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के उनको आज़ाब होगा, वो उनको सताएंगे, उनको आज़ाब दिया जाएगा कब्र के अंदर। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा के सहाबी हजरत तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी है। यही कबीले दौस था जहां के रहने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, यही कबीले दौस था जहां के रहने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं और इनके जो दोस्त और साथी थे वो भी इस्लाम कबूल करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत करके मदीना चले जाते हैं, लेकिन मदीने की आबो हवा इन दोनों को राज नहीं आती। तो फैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बीमार हो जाते हैं और इनके जो दोस्त और साथी थे वो भी बीमार हो जाते हैं। जब ये दोनों बीमार हो गए तो उन्होंने दवा करना शुरू कर दी।
दवा करते करते तुफैल बिन अमर दौसी सेहत याब हो गए, मगर इनके जो दोस्त और साथी थे वो सेहत याब नहीं हो सके। उनकी बीमारियां बढ़ती गई। इतनी बीमारियां उनकी बढ़ी कि नाकाबिले बर्दाश्त उन्होंने अपने तरकस से तीर निकाला। तीर का इब्तिदाई हिस्सा लोहे का होता है, उसमें फल होता है, उस फल के जरिए से अपनी उंगली काट ली। अब फल उंगली काटेंगे तो कुछ निकलेगा ना, खून। इतना खून बहा कि बेचारे मर गए। इसको हम और आप क्या कहेंगे? खुदकुशी या आत्महत्या। बेचारे साहबी थे, लोगों ने दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद हजरत तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब देखते। वो आज वाला ख्वाब नहीं, आज के ख्वाब से अकीदे बनते, आज के ख्वाब से मदरसे की तामीर होती है। वो आज वाला ख्वाब नहीं था, वो अंबिया का, वो सहाबा इकराम का ख्वाब था। तुफैल बिन अमर दौसी देखते हैं कि भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहा कि हाँ, खुशी इस बात की है कि मैंने अल्लाह के दीन के खातिर जो हिजरत की, अल्लाह के दीन के खातिर अपने घर बार को छोड़ा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत दे दी, इस वजह से मैं खुश हूं। लेकिन तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि भाई अपने हाथों को ढपे हुए क्यों हो? बेचारे अब दीदा हो, रोने लगे कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ी सिफारिश की कि ऐ परवरदिगार, मैंने तेरी गलती कर दी, तू मुझे माफ कर दे। ऐ परवरदिगार, मैंने तेरी शान में गुस्ताखी कर दी, तू मुझे माफ कर दे। ऐ परवरदिगार, मैंने तेरी मुखालिफत कर दी, तू मुझे माफ कर दे। लेकिन जब मैं अल्लाह से कहता तो अल्लाह मुझसे यही कहता है, मेरे बंदे, जिसको तूने खराब किया है मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसको उनको कब्र के अंदर, ये बात अलग है कि उन्होंने गलत काम किया, एक हराम काम किया, खुदकुशी करना जायज नहीं है, और जिसकी वजह से उनको आजाद दिया जा रहा, उनके हाथ दुरुस्त नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफैल बिन अमर दौसी अल्लाह इन ख्वाब को देखते हैं, घबराते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, राईतुल फी मनाम व कदा व कदा, अल्लाह के नबी मैंने ख्वाब में ऐसा ऐसा देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाया और उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा फिर यदई, अल्लाह ताला तू उनके हाथों को भी बख्श दे। वक्त हो चुका है, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन तो हमें इस कब्र की तैयारी करने की पूरी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमें कब्र के अजाब से महफूज रख। इलाहुल आलमीन तो हमारे अमाल की इस्लाह फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो हमें नेक और साले बना दे, नमाज पंजगाना पढ़ने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, सेहत और आफियत के साथ जिंदा रख। जब इस दुनिया से हमारे जाने का वक्त हो, सांसों के टूटने का वक्त हो, आखिरी लम्हात हो, तो हमारी जबान पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीब फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।